Everyone, I am Abadur Rahman and this is second video of exercise 32 of class 7th mathematics. In previous video we already explained question number 1, 2 and 3. This video we will start from question number 4. Now question number 4 is that the surface area of a cube is 364 centimeter square. Find its volume. एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, surface area of cube is equal to 384 centimeter square. Find its volume. So first of all we find the side of a cube with the help of the surface area formula, and when we get side then we find the volume of the cube. Let's see the solution of question number 4. Now in question number 4 it is given that surface area of cube is equal to 384 centimeter square. It is already given in your question. Okay, we know that surface area of cube is equal to 6 into side square. So first of all find the value of side by calculation by this method, this equation. Side square is equal to 384 divided by 6. Now simplify. 6 1s are 6, 6 6 are 36, 2 24, 6 4s are 24, means side square is equal to 64. If side square is equal to 64 means side is equal to under root 64 square root of 64 is equal to 8 centimeter. So we have cube, side of cube is equal to 84 centimeter. Now in question asking that find its volume. So we know that volume of cube is equal to cube, or simply you can say that cube of side, means side into side into side 3 times itself, 8 cube. Clear? Now 8 multiplied by 8 multiplied by 8, 8 8 and 8 is equal to 512. 512 in centimeter square, unit of area. So it is your answer. Okay, वॉल्यूम ऑफ क्यूब. क्या किया गया? सबसे पहला काम सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज़ करके आपने साइड फाइंड कर लिया. साइड क्या मिल गया? 8 सेंटीमीटर. उसके बाद वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया. वॉल्यूम में क्या होता? साइड क्यूब या एज क्यूब होता. तो जब हमको साइड मालूम नहीं थे तो हम वॉल्यूम नहीं निकाल सकते थे. तो पहले हमने क्या किया? साइड की वैल्यू फाइंड की सरफेस एरिया से. जब साइड मालूम हो गया तो वॉल्यूम क्यूब का लिए साइड क्यूब लगा दिया. 8 इंटू 8 इंटू 8 इसको मल्टीप्लाई कर दिया. 512 सेंटीमीटर इज क्यूब, सॉरी, unit of volume is equal to centimeter power 3. It is 3. Okay, now next question, question number 5. Now question number 5 is given that the volume of cube is 1728 cubic centimeter. Find the surface area. तो हम क्या करेंगे? पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज़ करके साइड मालूम करेंगे, और जब साइड मालूम हो जाएगा तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो आपको सरफेस एरिया मालूम हो जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन वॉल्यूम, क्वेश्चन नंबर 5. Okay, we know that volume is equal to 1728. 1728 वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है? साइड क्यूब, मीन्स साइड क्यूब इज इक्वल टू 1728. क्लियर? नाउ साइड इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1728. क्यूब रूट ऑफ 1728. अब इसका हमको क्यूब रूट निकालना है. देखिए स्क्वायर रूट में क्या था? कोई भी चीज़ रूट के अंदर 2 टाइम्स होती है, मीन्स पेयर के फॉर्म में होगी तो उसमें से सिंगल वैल्यू बाहर आएगी. यहाँ पे क्यूब रूट है, मीन्स कोई भी चीज़ 3 के ग्रुप में होगी. 3 का एक ग्रुप, फिर 3 का एक ग्रुप, तो उसमें से एक एक नंबर बाहर आएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टराइज 1728 बाई LCM मेथड. 1728. आइए इसको सॉल्व करते हैं पहले. नाउ राइट हियर 1728 ना, 1728. ये 2 से डिवाइड होगा तो इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं. डिवाइडेड बाई 2. 2 8 ज़ 16, 2 6 ज़ 12 एंड 2 4 ज़ 8. ओके, नाउ अगेन इट इज़ ऑल्सो डिवाइजेबल बाई 2. सो डिवाइड 864 बाई 2. 2 4 ज़ 8, 2 3 ज़ 6 एंड 2 2 ज़ 4. Now again divided by 2. 2 2s are 4, 2 1s are 2 and 2 6 are 12. Again divisible by 2. 2 1s are 2, 0, 2 8s are 16. Okay, again
2 5 10, 2 4 8. Again it is also divisible by 2. 2 2 4, 2 7 14. Now 37 means we can write 3 9 27, 3 3 9. Okay, it is completed prime factor of 1728. 1 2 3 4 5 6 times 2 and 3 times 3. So we can write prime factor of 1728 as 2 multiplied by 2, 2 multiplied by 2, 2 multiplied by 2 and 3 into 3 into 3. Okay, now your solution is, we can write here. Okay, here cube root 2 6 times, no? 2 multiplied by 2 multiplied by 2 and 2 multiplied by 2 multiplied by 2 again 3 times. ओके मैंने कहा यहाँ पे क्यूब है ना, मीन्स ग्रुप कितने का बनेगा, 3 डिजिट का. इस नंबर में से एक 2 बाहर आएगा. ओके ऐसे यहाँ पे 3 का ग्रुप हो गया, एक इसमें से 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे एक 3 का ग्रुप है, इसमें से एक 2 बाहर आएगा. मतलब जो ग्रुप बनेगा वो 3 डिजिट का बनेगा. 2 2 4, 4 3 12. सो साइड क्या हो गया आपका 12 सेंटीमीटर. क्लियर. नाउ वॉल्यूम साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. क्वेश्चन में क्या करें आप, फाइंड द सरफेस एरिया. अब सरफेस एरिया के लिए हम जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो क्या होता है, सरफेस साइड आपको मिल गई 12 सेंटीमीटर. क्लियर. नाउ सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6 इंटू एच स्क्वायर या स्क्वायर ऑफ साइड. नाउ 6 मल्टीप्लाइड बाई 12 स्क्वायर मीन 6 मल्टीप्लाइड बाई 12 इंटू 12. अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए. 12 6 72. Now 12 2 24, carry 2, 12 7 84 and 2 86 सेंटीमीटर स्क्वायर. इट इज़ योर आंसर. क्लियर. सबसे पहला काम क्या किया, वॉल्यूम का यूज़ करके साइड मालूम किया. जब साइड मालूम हो गया तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा दिया, आपको साइड वो सरफेस एरिया मालूम हो जाएगा. क्लियर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. Now in question number 6 it is given that the volume of a water tank is 5 cubic meter. What is its capacity in liter? मीन्स जो वॉल्यूम दिया गया वो क्यूबिक मीटर में दिया गया और उसकी कैपेसिटी किस में पूछा जा रहा है आपसे, लीटर के फॉर्म में पूछा जा रहा है. लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6. नाउ गिवन वॉल्यूम इज इक्वल टू 5 मीटर क्यूब. 5 मीटर क्यूब. ओके we know that 1 meter cube is equal to, since 1 meter cube is equal to 1000 liter in the form of, okay आपसे पूछा गया है कि कितने क्यूबिक 5 क्यूबिक मीटर में कितने लीटर होंगे. सो वी नो दैट इफ 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर, so 5 cubic meter is equal to 5 into 1000 means 5000 liters. Okay, it is your answer. Now second part, how many liter can be contained by a cistern 3 centimeter by 5 decimeter long and 2 meter 4 decimeter wide and 2 meter deep. अब इसमें देखिए लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आपको मालूम है. लेंथ कितनी है 3 मीटर 5 बाई 3 मीटर 5 डेसीमीटर. अभी इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर के फॉर्म में, वो बात की बात है. 2 मीटर 4 डेसीमीटर एज ए ब्रेथ, 4 डेसीमीटर एज ए ब्रेथ एंड 2 मीटर डीप मीन्स एज ए डेप्थ कह लीजिए, या नीचे से मेज़र किया जाएगा तो वही चीज़ आपकी हाइट को रिप्रेजेंट करेगी. इसको डिवाइड करेंगे आप मीटर में तो 10 से डिवाइड करना होगा. 3.5 मीटर, ये हो गया 2.4 मीटर एंड 2 मीटर ऑलरेडी इन मीटर. 10 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर. तो डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो कितना होगा, 10 से डिवाइड होगा. क्लियर. आपसे वॉल्यूम पूछा गया है तो वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. हम क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे. 3.5 मल्टीप्लाइड बाई 2.4 मल्टीप्लाइड बाई 2. 3.5 इंटू 2 7 ना, ये कितना हो गया 7 4 ज़ा
28 एंड 7 टू ज़ 14 एंड टू 16.8 क्यूबिक मीटर। इससे पहले के क्वेश्चन में जैसे भी कहा था कि 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, लीटर के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो अगर इसी को हम लीटर के फॉर्म में लाएं तो 16.8 मल्टीप्लाइड बाई 1000 लीटर। ठीक, बस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 16800 लीटर। ये आपका वॉल्यूम हो गया, कैपेसिटी होगी टैंक की। क्लियर। नाउ थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6, third part. A cubical cistern contains 729 liter, means capacity, or you can say that volume 729 liter. Okay, it is given that cistern capacity is 729 liter. Find the area of its base. एरिया फाइंड करना है, तो वो बात की बात है, पहले हमें साइड फाइंड करनी होगी। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो कैपेसिटी है वो लीटर के फॉर्म में है। अगर इसको हम मीटर के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो वी नो दैट 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 क्यूबिक मीटर। तो लीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो डिवाइडेड बाई 1000 क्यूबिक मीटर। क्लियर। अच्छा, इस ये वॉल्यूम हो गए। वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है साइड क्यूब, मीन्स 729 अपॉन 1000। इसको आप लिख सकते हैं 9/10 होल क्यूब, मीन्स साइड क्यूब इज इक्वल टू 9/10। So simply side is equal to 9/10. Okay, or you can say that 0.9 meter. आपसे पूछा क्या गया था? Find the area of the base. Area of the base means length into breadth. Area means length into breadth या side square. तो 0.9 whole square. 0.9 whole square means 0.81 meter square as a answer. Okay. Now next question, question number 7th. Here question number 7, एक बात और सुनिएगा, इस एक्सरसाइज के 32 चैप्टर के सारे टॉपिक आपके, सारे क्वेश्चंस आपके सिलेबस में नहीं है। तो जितना आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा सिर्फ उतना ही आपको पढ़ाया जा रहा है। वैसे तो इसमें वॉल्यूम का क्वेश्चन हो सकता है आपके पेपर में नहीं पूछे जाए, फिर भी कुछ क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं जो हम पढ़ा दे रहे हैं। सिर्फ वही क्वेश्चन आपके एज ए सिलेबस में, बाकी जो क्वेश्चन छोड़ दिए जा रहे हैं वो आपके सिलेबस के क्वेश्चन नहीं है। क्लियर। तो जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में एक्सप्लेन किए जा रहे हैं या इससे पहले वाले वीडियो में एक्सप्लेन किए गए हैं इस चैप्टर से, सिर्फ और सिर्फ वही चैप्टर क्वेश्चन आपके सिलेबस में होंगे। बेहतर है आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, बट इतना भी सफिशिएंट है। बट एग्जाम्पल सब सॉल्व कर लीजिएगा, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्पल से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7th। हियर द एरिया ऑफ बेस ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क इज 6500 सेंटीमीटर स्क्वायर and volume of water contained in it is 2.6 cubic meter. Find the depth of the water in the tank. एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो एरिया है वो सेंटीमीटर स्क्वायर के फॉर्म में दिया गया है और यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो मीटर के फॉर्म में दिया गया है। तो हमको या तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा या सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा, दो में से किसी एक यूनिट में होना चाहिए। लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7th. Now question number 7, it is given that the area of the base of rectangular tank is 65 centimeter square. Area, clear? Area is equal to 6500 centimeter square. Clear? अच्छा, अगर हमें सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो कितना हो जाएगा? 6500 मल्टीप्लाइड बाई 1/10,000 मीटर स्क्वायर। ऐसा क्यों? क्योंकि सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 1/100, तो सेंटीमीटर स्क्वायर है 1/100 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो वो आपका 10,000 हो जाएगा। 100 इंटू 100 करेंगे तो 10,000 हो जाएगा। अब 2 0 यहाँ से कैंसिल हो गया विद 2 0। क्लियर। नो व्हाट विल बी एरिया? 65/100 मीटर स्क्वायर एज ए एरिया ऑफ बेस। Okay, it is clear. Now next part, if and the volume of water contained in it is 2.6 cubic meter. वॉल्यूम कितना मालूम है आपको? वॉल्यूम इज इक्वल टू 2.6 क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर ऐसे भी लिखा जाता है, स्पेलिंग के फॉर्म में आपकी बुक में लिखा है CUBIC, वो भी माना जाएगा, दोनों एक ही चीज़ है। अच्छा, मालूम क्या करना है आपको? हाइट फाइंड करना है। तो एक फॉर्मूला शुरू में, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है,
वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है एरिया इंटू हाइट ना। तो हाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम अपॉन एरिया। हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन एरिया। अब इसमें वॉल्यूम एंड एरिया की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, बस आपका कुछ काम खत्म हो गया। वॉल्यूम मीन्स 2.6 एंड एरिया 65 अपॉन 100। इसको सॉल्व करना है। अब ये सॉल्व कैसे होगा, ऐसा समझिएगा। पहले क्या होगा, 2.6 मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन 65। यहाँ से अगर एक पॉइंट हटा दें तो नीचे एक ज़ीरो बढ़ाना होगा। क्लियर? ओके। ये 0 0 कैंसिल आउट। 13 2 ज़ा 26, 13 5 ज़ा 65, 5 2 ज़ा 10। सो 4 मीटर एज ए डेप्थ ऑफ द टैंक। क्लियर? डेप्थ कह लीजिए, हाइट कह लीजिए, जो भी है। तो कितना आंसर हो गए, एज ए 4 मीटर। वाई 4? 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. In question number 8, it is given that a cubical vessel is 12 centimeter long, 8 centimeter wide. Length is given 12 centimeter and breadth is given 8 centimeter wide. Clear? Now, how high should it be made so that its volume is 480 cubic centimeter? Volume कितना होना चाहिए, दिया गया है 480 सेंटीमीटर, 480 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये वॉल्यूम की वैल्यू है। क्लियर? नाउ आपको मालूम क्या करना है, हाइट फाइंड करनी है। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया, हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन लेंथ इनटू ब्रेथ। सब की वैल्यू पुट कर दीजिए बस। 480 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 8। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं मुश्किल है। इसको डिवाइड सिंप्लीफाई करिए। 12 1 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48 एंड 8 5 ज़ा 40। सो 5 सेंटीमीटर एज ए height. Clear? It is completed. Now next question, question number 9th. From next question we will discuss in next video. So try to understand all these questions, solve in your copy, complete your work. In case of any doubt, you may contact me on my WhatsApp number. Thank you everyone. Goodbye.